क्या स्लाइड दिख रहा है मेरे मेरे स्क्रीन में? Yes, are you able to see the screen? Yes, sir. Okay. So yesterday we were talking about the different instruction sets, in which I have told you that instruction sets are categorized into different categories. That is data processing instructions, data transfer instruction. Then we have block transfer instruction, branching instructions, and multiply instructions, and software interrupt instructions. Now we have started with the data transfer instructions. Okay, I have told you the data processing instructions we will see afterwards. Okay. Now with this understanding, even I have started with the load and store instruction. Okay. I have started with the load and store instruction. I have explained you that load and store instruction is actually the feature of RISC architecture, which we find in the ARM. So load and store architecture says that whenever we have to manipulate, or whenever we have to do the data processing in the ALU, the data has to be brought into the register. So that is called as loading. And once we get the result, once we get the result, then the result is stored back into the memory. So that is called as storing. So loading and storing instructions we have seen. So in the load and store instruction, so that comes under the data transfer. Okay, that comes under the data transfer. We are transferring the data. Now remember this: the data is getting transferred between the register and memory. Okay, between the data between the register and memory. So in this load and store, we have seen that what are the different data types. The data types can be word, half word, and byte. Okay, so it is from to and from register, from register towards memory, or from memory towards the register. And this data can be signed and unsigned. Okay, so to take care of word, half word, byte, signed and unsigned, I have already told you there are different total 10 instructions are there. Okay, so these are the LDR, STR. So L stands for loading, that is from memory towards the register, and S stands for storing, from register towards the memory. Okay, so depending upon whether you are transferring word, half word, or byte, depending upon that, you have different 10 types of instructions used under the load and store. Okay, so this thing we have studied yesterday. Now today I'll be talking something more about this LDR, load and store instruction. Okay, I hope यहाँ तक किसी को कुछ problem नहीं है. If you have any questions, you can ask me so that I can rectify your query and we can proceed further. किसी को कुछ problem है यहाँ तक? सर वो कल आपने वो जो एक्सप्लेन किया था ना, हाँ. इफेक्टिव एड्रेस और बेस एड्रेस वाला, सर वो एक बार शॉर्ट में फिर से कर दोगे प्लीज? मैं एक काम करता हूँ, वो पिछले लेने से अच्छा मैं जब अभी आगे जो पढ़ाने वाला हूँ उसमें भी एग्जांपल है इफेक्टिव और बेस एड्रेस का, तो उसमें दैट पॉइंट विल बी क्लियर. ओके. ओके सर. हाँ. एनीथिंग मोर यू नीड टू अंडरस्टैंड? नो सर, ये समझा. Okay, okay. So I will start with the I will start with the further part, which is associated with the load and store. Okay. So I want everyone to pay attention now. Load and store is very important. Mostly the questions are asked, so you should be aware of this. Now, whenever you talk about the load and store, we have two different types of addressing modes. मैंने आपको पहले बताया था कि मैं पहले इंस्ट्रक्शन सेट लूंगा और बाद में जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे एड्रेसिंग मोड्स पढ़ाऊंगा. सो हम जब एलडीआर सॉरी लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि देर आर टू डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स विच आर एसोसिएटेड विद लोडिंग एंड स्टोरिंग. Okay, which are associated with load and storage. So these two different addressing modes are, I will write down. The first one is called as pre-indexed addressing mode, and the second one
it is a post indexed. So you have to just understand pre means what and post means what. Pre means what and post means what. So we will see one by one with an example. Now whatever the example I will be setting out, these examples are related with load and store instruction. Okay, so because ये जो दो addressing modes हम जो पढ़ रहे हैं, okay, they are called operand addressing. ये दोनों को मिला के these are called as operand addressing. Operand addressing. Okay. तो एड्रेसिंग मोड में एक्चुअली हम क्या देखते हैं कि हाउ डू यू एक्सेस योर एड्रेस फ्रॉम द मेमोरी टुवर्ड्स द रजिस्टर और फ्रॉम टुवर्ड्स द रजिस्टर टुवर्ड्स द मेमोरी एड्रेस. ओके, तो हम कैसे व्हाट डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स वी हैव. सो एज फार एज load and store instruction is concerned, we only have two types: pre-index addressing mode and post-index addressing mode. Okay, so we are going to understand these two different addressing modes with respect to the load and store instruction. Okay, so I will take only one example for both of this so that it will be more clear. So what do you mean by pre-index? What do you mean by post-index? Here the important thing to underline is pre and post. Okay, so why this said as a pre-indexed and why this said as a post-index? Okay, so that thing we will see now. I will explain this with an example. So we will start with the first example. Now in general, okay, in general your pre and now we will talk about the pre-index now. We will talk about the pre-indexed addressing mode. Now in general, if you see the instructions related with load and store, I'm going to write out in general. It can be your load or it can be your str store. See, these instruction I am writing in general, not specific instruction, but this instruction in general. Okay, as I have told you, we can have a condition. मैंने आपको पहले बताया था we have a condition. We can have. This is optional. This is optional. That is why it is shown in the curly bracket. So LDR instruction or STR instruction along with the condition. Then we have RD. You are familiar with this notation. RD stands for destination register. Okay. Comma के बाद मैं आगे लिख रहा हूँ. In square bracket, you have RN, comma, as well as you have offset address. Square bracket close. Now there is one important notation. Offset के बाद जो आएगा, square bracket के बाहर जो आएगा, that is in curly bracket exclamatory mark. Okay, now see here, what is mentioned in the curly bracket, that is optional. Okay, तो वो हम यूज कर सकते हैं या फिर नहीं यूज कर सकते. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे in general the instruction, you can use LDR or you can use STR. ये स्लैश है. Okay, दोनों में से हम कौन सा भी इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं. Along with that, you can use condition. The condition is shown in the curly bracket. So आपको लगता है तो condition दो. आप हमने देखा था there are 16 conditions you have. तो उसमें से आप कौन सा भी condition यूज कर सकते हैं. So that is applicable here. Then you have RD, that is a destination register, comma, and in the square bracket you have something. You have RN. This is one operand. Now here, this is nothing but your base address. This is your base address. See, ultimately I am interested in the effective address. And your effective address is given by depending upon what is mentioned in the instruction. So your effective address is mostly given by base address plus offset address. Base address plus your offset address. Now ये example जो मैं general में बता रहा हूँ, इसमें अगर आप देखोगे तो RN is your base address and your offset
जो भी कुछ रहेगा ऑफसेट, दैट इज योर ऑफसेट एड्रेस. Okay, now here you have a square bracket and you know the significance of the square bracket that uh, अगर मैं लोड कर रहा हूँ तो ये जो है ये मेमोरी एड्रेस है और मेमोरी एड्रेस कैलकुलेशन इज थ्रू द इफेक्टिव एड्रेस और इफेक्टिव एड्रेस में जो कुछ है दैट विल बी लोडेड इनटू योर आरडी, दैट विल बी लोडेड इनटू योर आरडी. अगर मैं स्टोर इंस्ट्रक्शन यूज कर रहा हूँ, so whatever is present in your RD, whatever is present is in your RD, because R is your register, okay, register, and that will be stored into the memory location given by base address plus offset address, that is your effective address. तो अगर मैं LDR यूज कर रहा हूँ या फिर STR यूज कर रहा हूँ, वो हिसाब से आप ये नोटेशंस यूज करोगे. नाउ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात चीज है लास्ट में है, that is exclamatory mark. Okay, that is exclamatory mark. For time being, you understand exclamatory mark means write back. It is nothing but write back. Write back. अब ये exclamatory का क्या मतलब है? अभी मैं example with a specific example I will explain. What do you mean by exclamatory? सर ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ये पॉइंटर है ना पूरा एक. हाँ, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है दैट मीन्स इसका जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा इसका इफेक्टिव एड्रेस का, वो इफेक्टिव एड्रेस जो एड्रेस रहेगा उसमें जो कंटेंट है, वो मेमोरी में जो कंटेंट है, दैट विल बी लोडेड इनटू आरडी. तो सर मतलब अगर मैं एलडीआर यूज कर रहा हूँ. ओके सर, मतलब हम लोग जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है, हाँ, उसमें डायरेक्टली हम डेटा स्टोर करेंगे या फिर डेटा क्योंकि देखो मैं जब मैं एलडीआर बोल रहा हूँ तो लोड बोल रहे तो मेमोरी से रजिस्टर में लोड कर रहा हूँ, और मैं जब एसटीआर बोल रहा हूँ इसका मतलब स्टोर बोल रहा हूँ मतलब रजिस्टर में से मेमोरी में स्टोर कर रहा हूँ. ठीक है ना? ओके सर, बट एक क्वेश्चन है मेरा. सर हम लोग रजिस्टर से डायरेक्टली रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? या फिर हमें उसको मेमोरी लोकेशन में करना? नहीं, देखो इसलिए तो मैं बता रहा था ना कि ये जो मैं आपको डेटा ट्रांसफर की जो बात कर रहा हूँ, दिस इज बिटवीन द मेमोरी एंड द रजिस्टर एंड द मेमोरी. इसलिए फॉर दैट वी हैव अ स्पेसिफिक लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन. और लोड एंड स्टोर हमारे पास टोटल कितने 10 इंस्ट्रक्शन है, टोटल 10 इंस्ट्रक्शन है. और आपका जो क्वेश्चन है कि हम रजिस्टर से रजिस्टर में भी कर सकते हैं क्या, तो उसके लिए डेडिकेटेड अलग इंस्ट्रक्शन है, वो इसमें नहीं आएगा. ये प्योरली आएगा मेमोरी टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी, बस. और अगर आपको रजिस्टर टू रजिस्टर करना है या फिर मेमोरी टू मेमोरी करना है, उसके लिए हमारे पास अलग से इंस्ट्रक्शन, वो ये कैटेगरी में इंस्ट्रक्शन नहीं आएंगे. वो क्लियर? ओके सर, मतलब सर लेकिन हम लोग को ARM7 में कर सकते हैं ना वैसा? हाँ, वैसे कर सकते हैं ना. हमारे पास जो एड्रेसिंग मोड्स है जो हम उसमें देख रहे हैं कि हम डेटा अगर मेमोरी में है तो उसको रजिस्टर में कैसे लाने का, और रजिस्टर में अगर कुछ डेटा है तो उसको मेमोरी में कैसे लाने का. तो मेमोरी से रजिस्टर लाने के लिए हम एलडीआर यूज करते हैं, और अगर हम रजिस्टर से मेमोरी में अगर डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो हम स्टोर यूज कर रहे हैं. इसलिए लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर वही है जिसमें हमको डेटा ट्रांसफर करना है बिटवीन द मेमोरी एंड द रजिस्टर. ओके सर. ओके, तो आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज इन जनरल, अगेन आई एम रिपीटिंग, एलडीआर या फिर एसटीआर इन करली ब्रैकेट कंडीशन. ये हमने पढ़े हैं डिफरेंट कंडीशन, 16 कंडीशन है. ओके, दैट इज ऑप्शनल. curly bracket close, then you have RD nothing but destination register. Okay, then comma in square bracket you have RN comma offset, where RN is your base address and offset will be given. Okay, will be given. Okay, so base address plus offset will give you effective address. और ये इफेक्टिव एड्रेस में कुछ भी डेटा है तो वो मेमोरी से लोड करना है रजिस्टर में. और अगर स्टोर करने की बात है तो रजिस्टर में से ये इफेक्टिव एड्रेस में हम स्टोर करेंगे. ओके, और इसके अलावा एक लास्ट वाला जो है करली ब्रैकेट में, वो है एक्सक्लेमेटरी मार्क. एक्सक्लेमेटरी मार्क का मतलब होता है राइट बैक. तो ये राइट बैक का क्या सिग्निफिकेंस है, दैट थिंग आई विल शो यू, आई विल एक्सप्लेन.
Now with this understanding we are going to go with the specific instruction. Okay, यही instruction मैं load के लिए भी बताऊंगा, sorry, यही instruction में will be explained with reference to the pre-indexed, and the same example will be used to explain about the post-index. Okay, तो अभी मैं आपको pre-index बता रहा हूँ, अभी आपको मैं pre-index बता रहा हूँ. तो pre-index में example I am giving you. The example says str r0 comma square bracket r1 comma hash 12 square bracket close. Now you need to correlate this example with the general example which I have given. Okay, so this is related with the pure store. Store का मतलब है रजिस्टर में से मेमोरी लोकेशन, रजिस्टर में से मेमोरी लोकेशन. ओके, कौन से रजिस्टर में से? ये R0 रजिस्टर में से, ये R0 रजिस्टर में से कौन से मेमोरी लोकेशन पे? ये मेमोरी लोकेशन पे R1 comma hash 12, where R1 is your base address and hash 12 is your offset. So as I have told you, your effective address is nothing but your base address plus offset. और ये जो इफेक्टिव एड्रेस आता है, ओके, यहाँ पे मुझे R0 का जो कंटेंट है वो यहाँ पे स्टोर करना है. ओके, ये इसका मतलब होता है. अब दिस थिंग आई विल एक्सप्लेन यू विथ अ फिगर नाउ, विथ अ फिगर. ओके, अब वो फिगर क्या कहता है? आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन. ओके, नाउ सी व्हाट दैट फिगर इज से. नाउ हियर योर सोर्स रजिस्टर, if I ask you, tell me the source register. What is the source register here in this example? Source register. Yes, anyone of you? If I ask you to identify the source register, which one is the source register? हम कहाँ से? Yes, it is R0, क्योंकि R0 में से हमको इफेक्टिव एड्रेस मेमोरी लोकेशन पे हमको ट्रांसफर करना है. ओके, तो अभी हमको I'm going to show you the graph. So you have now, for example, suppose the content of R0 is 0x5. I'm giving with an example. Suppose R0 का कंटेंट है 0x5. ओके, अभी ये मुझे मूव करना है वो इफेक्टिव एड्रेस पे. ये जो इफेक्टिव एड्रेस है ये वाला. ओके, अब ये मुझे आपको दिखाना है. सो हाउ डू आई शो दिस? ओके, नाउ सी हियर, नाउ यू हैव R1 which is your base address. सर ये R0 सॉरी हेक्साडेसिमल 5 सर, ये डेटा स्टोर्ड है इसमें. हाँ, ये कंटेंट है, R0 का कंटेंट है. R0 में जो कंटेंट है वो 0x5 है. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको. R0 में क्या है? 0x5. ठीक है? हाँ सर. हाँ, अभी आपका जो बेस एड्रेस है, फॉर एग्जांपल आपका बेस एड्रेस है 0x200. आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये समझ में आए तो आपको बाकी की सब चीजें समझ में आए. तो आपका बेस एड्रेस है R1 और R1 कंटेंट है 0x200. ओके, तो ये जो आपका 0x200 जो है 0x200 है. ओके, ये पॉइंट कर रहा है ये लोकेशन, दैट इज पॉइंटिंग टू दिस लोकेशन. ओके, ये जो पॉइंट, हाँ, ये जो पॉइंट कर रहा है ये लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है 0x200. अभी ये R1 में मुझे इफेक्ट ऑफसेट को ऐड करना है. मेरा ऑफसेट कितना था? सो आई हैव टू ऐड माय ऑफसेट. ऑफसेट वाज हाउ मच? 12.
ये देखो ये 12 ये वाला #12 ओके। तो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट कैसे करेंगे कि बेस एड्रेस प्लस ऑफसेट। तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपका जो बेस एड्रेस है 0x200 ओके, उसमें 12 को ऐड करना है। व्हेन यू ऐड 12 टू दिस बेस एड्रेस you will get 0x20C। जब मैं 12 हेक्साडेसिमल नंबर को ऐड करता हूँ 0x200 को, हाँ तो सर। आई एम गेटिंग 0x20C। सर तो एक क्या है, डाउट है। रुको मुझे पहले ये होने दो, बाद में आई विल टेक योर क्वेश्चन। तो हियर कैन आई से 0x20C is my effective address? Can I say my base address which was 0x200 which is added with the offset, then I'm getting 0x20C which is the effective address, okay। तो ये जो इफेक्टिव एड्रेस है, सपोज ये वाला, ये एड्रेस लोकेशन पे मेरा क्या जाने वाला है, ये जो है R0 का कंटेंट। यस वो वहां पे जाने वाला है। तो इट इज 0x5। So this is the figure which will give you the clear cut idea about actually क्या हो रहा है when I am executing this str। फिर से मैं बता रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूं मैं, इसका मतलब रजिस्टर में से मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर रहा हूँ ओके। तो रजिस्टर R0 इज अ सोर्स रजिस्टर, उसमें क्या है मेरा 0x5 है। वो 0x5 मुझे स्टोर करना है मेमोरी एड्रेस लोकेशन पे। और मेमोरी एड्रेस लोकेशन इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट कैसे करूंगा, बेस एड्रेस प्लस ऑफसेट। मेरा बेस एड्रेस कौन बता रहा है, R1। मेरा R1 एग्जांपल क्या है 0x200, उसमें मुझे ऑफसेट को ऐड करना है ओके। तो ये 0x200 एक मेमोरी लोकेशन दिखा रहा है, लेकिन उसमें मुझे इंटरेस्ट है क्या, नहीं है, क्योंकि मुझे इफेक्टिव एड्रेस चाहिए। इफेक्टिव एड्रेस कैसे मिलेगा, जब मैं बेस एड्रेस को ऑफसेट के साथ ऐड करूंगा। तो ये जब 0x200 को जब मैं 12 के साथ ऐड करता हूं, तो आई एम गेटिंग 0x20C। तो ये 0x20C ये मेरा हो जाता है इफेक्टिव एड्रेस, और ये इफेक्टिव एड्रेस में एक्चुअली मुझे जो R0 का जो कंटेंट है 0x5 वो स्टोर करना है। तो 0x20C में मेरा 0x5 आ गया, बस दैट इज योर फाइनल। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस नाउ? सर वो जो 12 है सर, वो हाँ, हेक्साडेसिमल में 12 है या डेसिमल में 12 है? दिस इज हेक्साडेसिमल, दिस इज ऑफसेट व्हिच इज इन हेक्साडेसिमल। ओके सर। हाँ, दिस इज हेक्साडेसिमल ओके। अभी आपको समझ में आया ये कैसे हो रहा है फिगर में काम? हाँ सर, समझ रहा है सर अभी। हाँ, अभी और एक बात है, अभी दूसरी बात है, ये प्री इंडेक्स एड्रेसिंग मोड अभी एक्चुअली क्या है आपको समझ में आएगा ओके। अभी प्री इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, द एड्रेस ऑफ द डेटा ट्रांसफर इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग एन ऑफसेट टू द वैल्यू इन द बेस रजिस्टर ओके। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो मेरा बेस एड्रेस है, ये मेरा जो बेस एड्रेस है R1, ये R1 जो है ना मेरा, आफ्टर एग्जीक्यूशन मेरा R1 विल बिकम 0x200 ओनली। ये अपडेट नहीं हो रहा है, मेरा बेस एड्रेस अपडेट नहीं हो रहा है। R1 मेरा आफ्टर एग्जीक्यूशन मेरा R1 विल बी 0x200 ओके। एक्चुअली अपडेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इफेक्टिव एड्रेस के साथ। तो जो मेरा R1 0x200 था, वो अपडेट होना चाहिए 0x20C के साथ, लेकिन वो नहीं हो रहा है, ओके। सर वो नहीं क्यों? हो रहा है। हाँ, तो सर मैं मतलब बता रहा हूँ, ये आपका जो बेस एड्रेस है R1, कैन आई से बिफोर एग्जीक्यूशन मेरा R1 का कंटेंट है 0x200, यस। आफ्टर आई एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन R1 का कंटेंट is not updated, it is the same 0x200, it should be updated, it should have been updated। लेकिन प्री इंडेक्स में updated value is not included in R1। अगर मुझे अपडेट करना है
अगर मुझे अपडेट करना है, प्लीज सी ऑन द स्क्रीन, यू हैव टू इंक्लूड एक्सक्लेमेटरी मार्क, यू हैव टू इंक्लूड एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था, ये जो इंस्ट्रक्शन दिख रहा है आपको आगे में, यही अगर मैं ऐसा लिखता हूँ str r0 कॉमा r1 कॉमा हैश 12 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और बाद में अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो इसका मतलब होता है आपका जो बेस एड्रेस है वो अभी अपडेट हो जाएगा। अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है तो आपका बेस एड्रेस अपडेट नहीं होगा। तो it depends upon the programmer whether the programmer wants, after execution of the instruction, whether the base address should be updated with the new effective address, और अगर उसको नहीं चाहिए तो एक्सक्लेमेटरी मार्क को नहीं डालेगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं डालेगा, और जो कुछ आपका बिफोर एग्जीक्यूशन है आपका बेस एड्रेस, वही आफ्टर एग्जीक्यूशन वही आपका वैल्यू आर बेस एड्रेस का रहेगा। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? सर इसका बट मतलब, हाँ सर हम बेस एड्रेस में क्या अपडेट करेंगे, मतलब जो इफेक्टिव एड्रेस है वो? बेस एड्रेस में आपका ये जो था 0x200, that was before execution. After I execute, my base address should have the updated value of effective address, क्योंकि बेस एड्रेस +12 जो करूंगा मैं, वो इफेक्टिव एड्रेस मेरे R1 में रिफ्लेक्ट होना चाहिए था आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो अगर आपको चाहिए, अपडेट होना चाहिए, यू हैव टू इंक्लूड द एक्सक्लेमेटरी मार्क। इसलिए इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क को क्या नाम दिया है? राइट बैक, राइट बैक। ओके, दैट इज द राइट बैक। सो दिस यू हैव एन ऑप्शन, आपको R1 को अपडेट करना है विद द इफेक्टिव एड्रेस, यू हैव टू इंक्लूड एक्सक्लेमेटरी मार्क। अगर आपको अपडेट नहीं करना है, जो बिफोर एग्जीक्यूशन था वही आफ्टर एग्जीक्यूशन आपका बेस एड्रेस अगर आपको चाहिए, तो यू कैन इग्नोर दिस एक्सक्लेमेटरी मार्क। इज इट क्लियर नाउ? हाँ सर। ओके, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये दो इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन विदाउट एक्सक्लेमेटरी मार्क, दूसरा इंस्ट्रक्शन विथ एक्सक्लेमेटरी मार्क। सो एक्सक्लेमेटरी मार्क का मतलब होता है राइट बैक, अपडेट, राइट बैक या फिर अपडेट। ओके, नाउ विथ दिस अंडरस्टैंडिंग, with this understanding, we are going to understand now post indexed. Post indexed, what do you mean by post indexed? Now that was your pre indexed, now this is your post indexed. In the post index, in general, the instruction is given as LDR या फिर STR, in curly bracket you have a condition, you have a condition, then you have, I'm writing down in continuation with this, destination register, comma, I want you to see the difference between the general instruction used for pre-index and the general instruction used for the post-index. और इसके बाद हम वो एग्जाम्पल लेंगे, पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो ऑलरेडी अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इन स्क्वायर ब्रैकेट यू हैव RN, और यहाँ पे ही स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो रहा है, सो स्क्वायर ब्रैकेट इज क्लोज हियर, कॉमा and separately you have offset, and separately you have offset. Now this is a huge difference, this is a huge difference. So this is called as a post indexed addressing mode. In general it is LDR या फिर STR, in curly bracket condition RD, comma, in square bracket it is RN, square bracket close, comma, and offset. Now this thing I will explain you with an example, the specific example. हाँ सर, इसके पहले वाला जो था वो 24 बिट्स ऑक्यूपाई करेगा ना, मतलब, और ये 32 बिट्स? यानी समझा नहीं मैं।
सर ये अगर हम ऑफसेट अलग कर देते हैं तो जितने भी प्लेसेस हम नहीं यूज कर रहे हैं उनको हम जीरो से फिल करेंगे, राइट? नहीं नहीं नहीं, तो सर लेकिन अभी वो ऑफसेट, नहीं नहीं नहीं, ये ऑफसेट अभी आप कैसे यूज करोगे, मैं आपको विद एग्जांपल बताऊंगा, दैट टाइम इट विल बी क्लियर. फर्स्ट सी द पर्टिकुलर एग्जांपल, the specific example now. The same example I am writing down, str r0 comma in square bracket r1 square bracket close comma hash 12 hash 12. Okay, so this is a specific example. हमने प्री इंडेक्स में क्या लिया था, str r0 कॉमा इन स्क्वायर ब्रैकेट हमने लिया था r1 कॉमा हैश 12. यहाँ पे वैसा चीज नहीं है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट में r1 है और हैश 12 अलग से है. अब ये दिस थिंग आई विल एक्सप्लेन यू विद द figure now, with the figure. Now see the figure, see the figure. Now in this figure you will be able to understand properly the same example I am talking about. So can I say, tell me your source register, it is r0. I am taking the same example, it is 0x5, 0x5, okay, 0x5. Now see here, my original base address, original base address, my original base address is given by r1, and the content of r1 the same thing, 0x200, 0x200. So that is pointing to the memory location 0x200. Okay, that is pointing to the memory location here. Okay, so this is the location 0x200. Now offset is added, offset is added, so I can say offset of 12 is added. So this is my offset, this is my offset, and once your offset is added, you will have the updated base address. So I am writing down here updated base address. And what is that updated base address? That is your r1, और वो क्या है, वो है 0x20c, 0x20c, 0x20c. अब यहाँ पे 0x20c ये लोकेशन है, ये लोकेशन है, ये लोकेशन. अब मेरा क्वेश्चन है, योर 0x5 ये यहाँ पे जाएगा क्या, ये यहाँ पे जाएगा? My question is your r0, because what I am using the instruction str. So my question is whether your 0x5 will be moved into this memory address location or it will be moved to this memory address location. सर वो See, I will show you, 0x20c. I will show you the instruction. See this instruction. Now tell me, आपका R0 जो कंटेंट है 0x5 वो कहाँ पे जाएगा? सर 0x20c में जाना चाहिए. No, it will go to 0x200. So your 0x5 will be stored here. Will be stored here. Now how it is happening? See here now. Now this is the post index. You have this in the square bracket. Now जो square bracket में है your R1, जो square bracket में आपका R1 है, वो जो content है that will be R0 will be loaded, will be stored into this effective address V1 by R1. आपका R1 क्या था? आपका 0x20 है. ओके, ये स्क्वायर ब्रैकेट में है आपका R1 और बाद में अलग से आपने हैश 12 किया है. तो आपका R1 जो है
आपका जो R1 है that is 0x200. So this is the one. Okay, this is your original base address. लेकिन ये मेरा बेस एड्रेस को मैंने बाद में 12 को ऑफसेट से ऐड किया है, तो अब जाके मेरा R1 अपडेटेड हुआ है बेस एड्रेस के साथ. तो your updated base address will be your 0x200. When it is added with the offset 12, you get 0x20c. So can I say my updated base address will be 0x20c? My R1 is updated with the updated base address of 0x20c. लेकिन मुझे जो R0 का कंटेंट जो डालना है वो R1 में डालना है, और अब मेरा R1 क्या है? मेरा R1 है 0x200. इसका मतलब ये है कि मेरा 0x5 will be loaded into this R1 and R1 will be updated with the effective address of adding base address with the offset. I hope you have understood now. अब यहाँ पे और एक दूसरी बात है इंपॉर्टेंट वाली, मैं आपको बताने वाला हूँ. ऑल ऑफ यू लिसन हियर. हियर ये जो हमने यूज किया था str R0 कॉमा in square bracket R1 comma #12. This is my post index addressing mode, and in my post index addressing mode you will never use exclamatory mark. You will never use exclamatory mark. Why? Because always your R1 will be updated version. Your R1 will be always will be your updated version. यहाँ पे मेरा R1 0x20 नहीं रहेगा. अपडेटेड वर्जन क्या है मेरा R1 का? अपडेटेड वर्जन है 0x20c. तो एक्सक्लेमेटरी मार्क कभी भी पोस्ट इंडेक्स एड्रेसिंग में नहीं रहता है, क्योंकि पोस्ट इंडेक्स एड्रेसिंग में हमेशा मेरा जो बेस एड्रेस है वो अपडेटेड वर्जन में रहेगा. इसका मतलब ये होता है कि आफ्टर द इंस्ट्रक्शन इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड, my R1 will have the updated value. After I execute the instruction, always my base address will have the updated value in my post index addressing. इसलिए एक्सक्लेमेटरी मार्क की बात ही नहीं आती है, लेकिन प्री में ये ऑप्शन है. प्री इंडेक्स एड्रेसिंग में ये ऑप्शन है. अगर आपको अपडेटेड बेस एड्रेस वैल्यू चाहिए तो एक्सक्लेमेटरी मार्क शुड बी मेंशन्ड देयर. अगर आपको अपडेटेड वैल्यू नहीं चाहिए तो एक्सक्लेमेटरी मार्क आप वहां पे मत लिखो. ओके, लेकिन पोस्ट इंडेक्स में आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क कभी भी नहीं रहेगा, बिकॉज दिस इज नॉट एन ऑप्शन अवेलेबल इन पोस्ट इंडेक्स, बट एक्सक्लेमेटरी मार्क इज एन ऑप्शन अवेलेबल इन प्री इंडेक्स एड्रेसिंग मोड. I hope you have understood now. Any questions, any doubt you have? मतलब हमको जो डेटा है वो हमको 200 में ही मूव करना था, मतलब हेक्स 200 में ही मूव करना था, लेकिन हमको वो डेटा उधर मूव करने के बाद हमें अपना एड्रेस अगर इंक्रीमेंट अपडेट करना है तो हम लोग ये पोस्ट यूज करते हैं. यस यू आर राइट. ओके सर, यू आर राइट. और दूसरा रीजन ये भी है कि 200 में ही क्यों मेरा डेटा गया, क्योंकि ये है मेरे स्क्वायर ब्रैकेट में सिर्फ R1 है. मेरे स्क्वायर ब्रैकेट में R1 कॉमा #12 नहीं है. समझा आपको? मेरे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में सिर्फ R1 है, तो सिर्फ R1 का मतलब R1 मेरा क्या था पहले? 0x20. तो इसी में मेरा डेटा जाएगा, और वो होने के बाद मैंने ऑफसेट को ऐड किया है. तब जाके मेरा R1 अपडेटेड हुआ है 0x20c में. तो ऑलवेज मेरे पोस्ट इंडेक्स में मेरा R1 बेस एड्रेस हमेशा आफ्टर एग्जीक्यूशन अपडेटेड वर्जन रहने वाला है. दैट इज द मीन. इज इट क्लियर नाउ? यस सर. यस. सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चों को ये नहीं समझ में आता है. एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर से मैं लास्ट में बता रहा हूँ समरी. एक्सक्लेमेटरी मार्क इज एन ऑप्शन अवेलेबल ओनली इन प्री इंडेक्स एड्रेसिंग मोड. एक्सक्लेमेटरी मार्क आपके पास ऑप्शन नहीं है पोस्ट इंडेक्स में, क्योंकि पोस्ट इंडेक्स में आपका जो बेस एड्रेस है वो अपडेटेड फॉर्म में ही रहने वाला है, आप चाहो या ना चाहो. लेकिन प्री इंडेक्स में आपके पास ऑप्शन है, आपको अपडेटेड चाहिए
तो एक्सक्लेमेटरी मार्क मेंशन करो। एक्सक्लेमेटरी के मार्क का मतलब वही है, राइट बैक। और अगर आपको अपडेटेड वर्जन नहीं चाहिए बेस एड्रेस का, तो आप वहां पे एक्सक्लेमेटरी मार्क मत लिखो। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Okay, now we will proceed to the next now. Yes. Okay, before I go with the data processing instruction, एक और लास्ट वाला बाकी है। डेटा ट्रांसफर हम देख रहे थे। ओके, वी वेर सीइंग द डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हमने लोड एंड स्टोर का देखा है, ये सब हमने देखा है। हमने टोटल 10 इंस्ट्रक्शंस देखे हैं, ये सब देखा है। एक इंपॉर्टेंट ये वाला है, एलडीएम और एसटीएम, ये हमने अब तक देखा नहीं है। एलडीएम, एसटीएम, वो जो टोटल 10 इंस्ट्रक्शंस थे लोड एंड स्टोर में, उसमें ये चीज नहीं थी। प्लीज see properly. So what is LDM and what is STM? These are the two instructions for block transfer. पूरे का पूरा ब्लॉक अगर मुझे ट्रांसफर करना है, पूरे का पूरा ब्लॉक अगर मुझे ट्रांसफर करना है, किसमें मेमोरी में से रजिस्टर में, या फिर रजिस्टर में से मेमोरी में, तो I can use LDM or I can use STM. Okay, so LDM and STM is what? This is a load store multiple instructions. Load store multiple instructions. Okay, so the block I can transfer. So मैं आपको फिगर से बताता हूँ, see now all of it. The whole register bank or a subset copied to memory or restored with single instruction. एक सिंगल इंस्ट्रक्शन से आप पूरा ब्लॉक ट्रांसफर कर सकते हो। कैन यू सी हियर नाउ? कैन यू सी हियर? दिस इज माय मेमोरी एंड दिस इज माय रजिस्टर बैंक। दिस इज माय रजिस्टर। ओके, अगर मुझे पूरे का पूरा ब्लॉक ट्रांसफर करना है फ्रॉम मेमोरी टुवर्ड्स द रजिस्टर, यूज एलडीएम। यूज एलडीएम। ओके, तो MI का R0, MI+1 का R1, MI+2 का R2, MI+14 का R14 और MI+15 का R15। दूसरी और बात है, अगर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ R14, R15 और R13, अगर मैं दिखा रहा हूँ तभी भी मैं वो 3 रजिस्टर यूज नहीं करूंगा। कौन से? R13, R14, R15, बिकॉज दे आर स्पेसिफिक रजिस्टर्स। ओके, दे आर स्पेसिफिक रजिस्टर्स। अगर मैं ये यूज करूंगा तो it's mostly we do not use these 3 registers because they have some specific function. So other than R13, R14 and R15, you can use different registers for block transfer. इसलिए LDM use करो to transfer the block from memory towards the register, और STM use करो to transfer the block from register to the memory. Okay, so this was the figure to explain you the concept of LDM and STM. वैसे ही swap instruction I have. Swap instruction, that is exchange of word or byte between register. आपका जो क्वेश्चन था कि सर रजिस्टर के रजिस्टर में हम कर सकते हैं क्या? Yes, we can have a swapping. So for that you have SWP and you have SWPB. The difference lies between your byte or your word. If you are using the word swapping, you can use direct SWP, and if you want to use the byte swapping, you can directly go with SWPB. Okay, SWPB. Okay, so exchange of word or byte between registers. So support for RT semaphores. So leave aside. See the example: SWP R1, R2
कॉमा R3. ओके, सो सी आपको जैसे चाहिए आप वैसे यूज कर सकते हो. यहाँ पे हमने 3 ऑपरेंड यूज किया है, यहाँ पे हमने 3 ऑपरेंड यूज किया है. सो यू कैन हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन. अभी आपको पता है कि ऑपरेंड्स हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं. ओके, सो R1 विल बी लोडेड विथ word addressed by R3 and store R2 at R3 and store R2 at R3. Okay, सर ये so RT सेमाफोर क्या होता है? leave this one. This is not so important for you. Leave this one. यहाँ पे एग्जांपल है, ये एग्जांपल SWP R1, R2. हम किन दो चीजों में स्वैप कर रहे हैं? R1 will be loaded with word addressed by R3 and store R2 at R3. So R1, ये जो आपका R1 दिख रहा है आपको, will be loaded with word addressed by R3. तो ये जो आपका R3 जो एड्रेस बता रहा है, because see there is a square bracket, इसका मतलब मेमोरी लोकेशन बता रहा है, पॉइंटर है ये. So R1 जो आपका है that will be loaded with the R3 address by R3 and store क्या हो रहा है? R2 at R3. Okay, तो R2 का जो भी कुछ कंटेंट है that will be stored into R3. So this is how it is called as swap. And the example is, हाँ, यानी क्या है, R3 का जो भी कुछ पॉइंटर मेमोरी पॉइंटर है, उसमें जो कुछ कंटेंट है वो R1 में जाएगा, ओके, और R2 का जो भी कुछ कंटेंट है that will go to R3. That is the meaning of this SWP R1, R2, square bracket R3. उसका मीनिंग यहाँ पे लिखा है, R1 will be loaded with word addressed by R3 and store R2 at R3. स्टोर का मतलब आपको पता है, स्टोर बोले तो फ्रॉम रजिस्टर टुवर्ड्स द मेमोरी एड्रेस, और लोडिंग का मतलब यू नो दैट आई एम मेमोरी टू द रजिस्टर एड्रेस. तो लोड हम क्या कर रहे हैं? R3 का R1 में ये लोडिंग हो रहा है, और स्टोरिंग क्या हो रहा है? R2 का R3 में. तो ये सब करना, ये स्वैपिंग ही है ना, एक तरह से स्वैपिंग है. तो ये स्वैप अगर मुझे करना है ये सब, तो मेरे पास सिंपल इंस्ट्रक्शन है. क्या इंस्ट्रक्शन है? SWP R1, R2, square bracket R3. Is it clear now? हाँ सर. ओके, देखो हम जब स्वैप करते हैं ना, तो हमको तीसरा एक रजिस्टर लगता है. हम डायरेक्टली इधर से इधर नहीं करेंगे. एक तीसरा रजिस्टर लगता है एक्सचेंज करने के लिए या फिर टेम्परेरी स्टोर करने के लिए. ओके, तो यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि R1 का क्या फंक्शन है, R2 क्या कर रहा है और R3 क्या कर रहा है. और लोड कर रहा है तो मेरे मेमोरी से रजिस्टर में, और अगर स्टोर कर रहा है तो रजिस्टर में से मेमोरी. सो दैट इज इट. So okay, this thing I can so before I wind up yes, so before I wind up in the next lecture I'll be talking about data processing instructions. In the data processing instructions, total you have 16 instructions, but these 16 instructions are categorized into different categories. Okay, so categories like when you talk about this data processing, it is categorized into 4. One is called as arithmetic instructions, second one is called as comparison and test instruction, third one is called as logical instruction, and fourth one is called as a data movement between registers. Okay, हमने जो पहले देखा था that was within the register but block transfer.
लेकिन अगर मुझे डेटा मूवमेंट करना है बिटवीन रजिस्टर, वही MOV जो आपने इंस्ट्रक्शन 8051 में पढ़ा है, वही उसमें दो फॉर्मेट, इसमें दो वर्जन है. ओके, so what I mean to say that in data processing instruction total we have 16 instructions, and these 16 instructions are categorized into 4 categories. One is called as arithmetic instruction, second one is called as comparison and test instruction, third one is called as logical instruction, and fourth one is called as data movement between registers. Okay, तो ये पहले वाला जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, सी डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे दोनों को क्लब करते हो. ओके, so in the next lecture I'll be talking about arithmetic and logical operation. See, arithmetic और logical operation की जब हम बात करते हैं तो these instructions are the same what we have studied in 805. Okay, with minute changes. Okay, so we will see this. Arithmetic and logical operations 3 एड्रेस फॉर्मेट है. आपको पता है 3 एड्रेस फॉर्मेट क्या क्या होता है. ऑपरेंड 1 होता है, ऑपरेंड 2 होता है, और ऑपरेंड 2 कैन बी अ रजिस्टर और इमीडिएट डेटा. तो दिस थिंग वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. देन ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि मेरा ऑपरेंड 2 विल बी ऑलवेज थ्रू द बैरल शिफ्टर. ओके, इट विल बी थ्रू द बैरल शिफ्टर, यानी ALU में जाने के पहले सेकेंड ऑपरेंड विल गो थ्रू द बैरल शिफ्टर. ये इसका मतलब होता है. ओके, ये इसका मतलब होता है. ओके, तो जैसे मेरा ऑपरेंड, इफ यू सी हियर, यू हैव ऑपरेंड 1 इज रजिस्टर, ऑपरेंड 1 दैट इज गिवन बाय RN. ओके, एंड जो आपका ऑपरेंड 2 होता है, दैट कैन बी योर रजिस्टर, दैट कैन बी योर एनी रजिस्टर, और इट कैन बी योर डेटा, इमीडिएट डेटा, और इट कैन बी योर इमीडिएट डेटा. ओके, तो ऑपरेंड 1 जो है OP1 is always my RN, और ऑपरेंड 2 जो होता है that can be your register or your immediate data. ओके, उसमें और एक चीज होती है, ये जो मेरा ऑपरेंड 2 होता है, जो मेरा रजिस्टर होता है ऑपरेंड 2, ये रजिस्टर will go into the ALU. Before going to the ALU it will go through barrel shifter. ये प्लीज रिमेम्बर द प्रोग्रामिंग मॉडल. मैंने प्रोग्रामिंग मॉडल में आपको बताया था ALU में आपके 2 रजिस्टर जा रहे हैं, एक जा रहा है RN और दूसरा जा रहा है RM. तो RN ALU में डायरेक्ट ही जा रहा है, RM जो है वो ALU में जाने के पहले बैरल शिफ्टर से जा रहा है या फिर बैरल शिफ्टर होके जा रहा है. ओके, तो यहाँ पे सेकंड वाला वही लिखा है कि बैरल शिफ्टर फॉर ऑपरेंड 2 अलाउज फुल 32-bit शिफ्ट विद इन इंस्ट्रक्शन साइकिल. यानी अगर मुझे ALU में ऑपरेंड 2 को ऑपरेशन करने के पहले उसमें अगर मुझे कुछ शिफ्ट करना है, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ओके, तो वो मैं बैरल शिफ्टर के थ्रू कर सकता हूँ. दैट इज अ मीनिंग. ओके, दैट इज अ मीनिंग. 1 minute इज लेफ्ट. सो नेक्स्ट लेक्चर में ये सब डिटेल में लेने वाला हूँ. ओके, हाँ, तो ये जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है उसमें कौन कौन से ऑपरेशन है, ADD, ADDC. many instructions are familiar to you, like ADD addition, ADDC addition with carry, SUB subtraction, SUBC subtraction with carry, RSB and RSC these are reverse subtraction. तो ये हम डिटेल में देखेंगे. बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेशन क्या है, एंड, XOR, और ओके, NBSC. तो दिस थिंग वी विल सी इन डिटेल. रजिस्टर मूवमेंट ऑपरेशन जैसे मैंने बताया था, डेटा मूवमेंट बिटवीन रजिस्टर, तो उसमें हमको सिर्फ 2 ही पढ़ने हैं, MOV और MVN. और लास्ट वाला जो है कंपैरिजन ऑपरेशन, उसमें हमको 4 पढ़ने हैं, TST, TEQ, CMP, CMN. तो मैंने आपको जो बताया था टोटल 16 इंस्ट्रक्शंस. ओके, if you count these instructions, so these are how many, 1 2 3 4 5 6. so these are 6. यहाँ पे कितने हैं, 4, यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, 4. so if you add this it will give you 16. so total 16 instructions are there for data processing instructions, and they are categorized into 4 categories: arithmetic operation, bitwise logical operation, register movement operation,
एंड कंपैरिजन ऑपरेशन. ओके, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आई विल एक्सप्लेन, अदर्स थिंग यू कैन डू एज अ होमवर्क. ओके, तो ये सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूँ. जस्ट अ मिनट. ओके, आई थिंक वी कैन स्टॉप. मनीष, अटेंडेंस हो गया क्या? सर अटेंडेंस हो गया, मैम ने चैट बॉक्स में लिखा. यस सर. हाँ, हो गया ना. 1 मिनट रुको, जाओ मैं जाऊँ. यस सर. Manish, 36 students हैं, लेकिन see that the stage should be more. Okay? Yes sir. Okay. So everyone can leave then. Bye bye. Okay, thank you sir. Okay.